सुपरस्टार किच्चा सुदीप 2022 में सुर्खियों में रहे अजय देवगन के साथ विवाद को लेकर। अब 2023 की शुरुआत में ही किच्चा सुदीप फिर से हेडलाइंस में है। चर्चा होने लगी कि किच्चा कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। बुधवार को किच्चा कर्नाटक में बीजेपी दफ्तर तो पहुंचे, वो भी मुख्यमंत्री के साथ, बसवराज बोम्मई के साथ, लेकिन भाजपा ज्वाइन उन्होंने नहीं की। लेकिन कर्नाटक चुनाव में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने हाँ जरूर बोल दिया। यानी भाजपा बीजेपी का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जगह जगह जाकर भाजपा के लिए वोट जरूर मांगेंगे किच्चा सुदीप। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किच्चा से ये सवाल किया गया था कि क्या उनका पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का आपको इरादा है। What you see as fans, sir, these fans have earned for after 27 years of hard work, sir. 27 years of hard work, sir. You think my fans are so naive or vulnerable that they'll let go of me because of certain stands I take in my life? Sir, this stand, what I'm taking is a very human stand, sir. I'm not entering politics, sir. Just to clear, I've just entered the stage of politics, sir, here. I'm not entering politics. अब किच्चा ने ये तो साफ कर दिया कि कैंपेनिंग करने आए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा, कोई मंशा जो है वो नहीं है। वहीं मोदी के लिए किच्चा ने कहा कि मैं पीएम मोदी के कई फैसलों का, निर्णयों का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उसका आज मेरे यहां कैंपेनिंग से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। Yes, of course, I agree upon our leadership, Mr. Modi. I totally respect certain decisions that he's taken, and as an Indian, I totally respect that, sir. But that has got nothing to do with me sitting here today, because this is with me connecting here. But again, coming back, as an Indian, sir, yes, sir, there are a lot of things I agree upon, and I'm very proud of whatever has happened, sir. दरअसल किच्चा बसवराज बोम्मई को पहले से जानते हैं। किच्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं बचपन से ही बोम्मई को जानता हूं और उन्हें मामा कहकर पुकारता हूं। ये मेरे साथ उस वक्त पर मौजूद थे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। ये मेरे लिए उनकी तरफ एक ड्यूटी है, शुक्र करने का एक तरीका है। मैं आज बहुत खुश हूं कि बोम्मई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं इन्हें सपोर्ट करता हूं और यहां पर मैं यही घोषणा करने आया हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं यहाँ अपने अंकल को सपोर्ट करने आया। वहीं सीएम बोम्मई ने सुदीप की बीजेपी के लिए कैंपेनिंग और उनसे अपने रिश्ते को लेकर क्या कहा, वो आप सुनिए। Yeah, he is my personal and family friend for a long time, and I requested him to campaign, and he has agreed to campaign for me and my party. Will he be campaigning only for you or for also your colleagues, sir? No, he told in the press conference that he will campaign whomever we decide, and he will do it to all our party candidates. But opposition, the Congress is hitting back to you because you are losing base in the state of Karnataka, and that is the reason you are getting actors to support you. The lot of actors are there in Congress already. They are also campaigning. That means they are losing. So, have you invited Sudeep to join the party, sir? No, I have not invited him to join the party. I invited him to campaign for us, and he will do it. For all the MLAs, sir, for the BJP? Whomever I say, it will be our MLAs only. ऐसा नहीं है कि किच्चा सुदीप सिर्फ बोम्मई से मिले। फरवरी में वो कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष जो है डीके शिव कुमार, उनसे भी मुलाकात की। उसके बाद भी चर्चाएं होने लगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किच्चा सुदीप से जब ऐसा एक सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने नाप तोलकर जवाब दिया। Few months back, your photo with DK Shivkumar had gone viral. Whether DK Shivkumar invited you to campaign for Congress, or it was just a cordial meeting with him? Sir, he's very well known to me. DK sir is very well known to me. Second, I want you to know, when I'm an actor, not just me, sir, any actors or any celebrities, there will be an approach. There will be invitations for us to even campaign or contest. That is obvious, sir. There will be. I would never say that, I'll never wave it off that it was not there. And it is not even wrong, sir. Anybody approaching us for any good thing is not at all wrong. It is what we decide about certain people that I am coming here to tell you that, sir. दरअसल कर्नाटक में चुनाव है और सभी पार्टियां किसी ना किसी पॉपुलर एक्टर या फिर आर्टिस्ट को अपनी तरफ करने की कोशिशों में इस वक्त लगी हुई है। अब बीजेपी ने एक तरफ जो है बड़े स्टार किच्चा सुदीप को अपनी तरफ कर लिया है। इससे कांग्रेस लेकिन कुछ खास खुश नहीं है।
Bharatiya Janata Party can influence anybody. Let them influence. The Karnataka election will be decided by 6.5 crore Kannadigas brother and sisters, not by film actors. बता दें कि इससे पहले किच्चा सुदीप ने 2020 के बायपोल्स के दौरान बेंगलुरु की राजा राजेश्वरी नगर सीट पर जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के ही एक एमएलए मुनि रत्ना के लिए कैंपेन किया था। वहां पर कैंपेनिंग के लिए उतरे थे। वहीं बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने की इन खबरों के बीच एक और खबर ये कि किच्चा सुदीप को धमकी भरा लेटर मिला। किच्चा के मैनेजर जैक मजनू के पास ये लेटर आया जिसमें एक्टर की प्राइवेट वीडियोस को रिलीज करने की धमकी जो है वो दी गई है। इसे लेकर अब केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है। वहीं किच्चा ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये किसने भेजा है, किसी फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ने भेजे हैं, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में ही मतदान होगा 10 मई को, नतीजे जो हैं वो 13 मई को आएंगे। अब कर्नाटक की राजनीति में क्या मोड़ आता है वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि इस पूरी राजनीति और भाजपा में किच्चा सुदीप की एंट्री कहें या फिर किच्चा सुदीप की कैंपेनिंग जिसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।